everyone, welcome to your PDA and this is Shubhya. So finally the HPCL results are out and I think that everyone is screaming with cheers कि हाँ भाई 3rd May को पेपर हुआ था, रिजल्ट्स आ चुके हैं और मल्टीपल आपकी वैकेंसीज थी. तो यस कंपटीशन तो है लेकिन हमें बहुत थोड़े दिन मिलते हैं. इंटरव्यू सर आई थिंक 8 to 10 डेज में इंटरव्यूज नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है, राइट? अब हमारा जो बेसिकली पर्पस But this time, sorry to cut you, Shubhya. This time they have not told the interview date. Normally क्या होता था Shubhya? You remember that जब भी ऐसे result निकलता है तो initial couple of students when they call us, they tell कि उस दिन मेरा interview है. Right, तो अभी तक बताया नहीं है. That is a positive thing because मेरे को लगता है थोड़ा ज़्यादा time शायद मिल जाए. पर सर हमें अप्रोक्सीमेट रखते हैं 10-15 दिन, है ना? इतना टाइम आपको मिल जाएगा अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए. पर स्टूडेंट्स को लगता है कि 10 दिन में क्या ही कर लेंगे, 15 दिन में क्या ही हो जाएगा. जीटीज का पता नहीं है, अगर किया भी है तो कैंपस में किया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू हेल्प यू. द पर्पस ऑफ दिस वीडियो एंटायरली द पैनल डिस्कशन इज कि हाउ वी विल बी ग्रूमिंग यू एंड व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू ब्रिंग ऑन बोर्ड फॉर यू. कि ये 7, 10, 15 डेज इवन 20 डेज हैं तो आप कैसे बहुत अच्छी स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं. टाइम टेबल बनाना एक इशू होता है कि कैसे टाइम टेबल अच्छा बन सकता है. सो फ्रॉम मॉर्निंग टू एंड तक ऑफ योर रूटीन्स हाउ यू नीड टू प्लान इट विद अस. We will be helping you. So every mentor will be pouring a lot of good ideas for you. So listen to the last of this video and also कि हर mentor क्या-क्या आपके लिए different perspectives ला रहा है because the team is big and yeah some of the members I could ask and gather them over here but yeah कुछ सर नहीं भी आ पाए आज हमारे साथ but we will be telling कि what everyone will be providing you for that. So sir आज हमारा basic purpose है. First I think everyone should be congratulating जो selections हुई हैं with a very smiling faces. एंड सेकंड सर मैं ये चीज पूछना चाहूंगी कि अब जेईओस के लिए भी है रिजल्ट्स आउट है, ऑफिसर्स के हैं, जेईएस के हैं, आपके एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए. जो स्ट्रैटेजीज जेईओ के लिए और ऑफिसर के लिए कैसे पीआई में डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें जीटी ग्रुप टास्क और पीआई होता है. डिफरेंस कहाँ पे आता है दोनों में? ओके सो फ्रेंड्स जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर पीआई फर्स्ट शुभ्या देयर इज अ टेक्निकल पार्ट फॉर जेईओ. And I can say 30 to 40% technical questions will be asked and rest will be HR. Officer, literally there is no HR or maybe less than 10% is HR for officers categories because officers they normally hire for maybe non-technical jobs like marketing jobs, sales job, but junior executive officers they are mainly recruited by HPCL for technical jobs only. Plus one more thing we have observed that most of the JEOs are already working in the organization. Right. So their interview largely goes in the direction of what they are doing in the organization, what work they are doing, how they are an asset for their present organization, why they want to leave their present organization. So junior executive officers are to prepare very nicely their present jobs. Right. Shubhya, I am quoting a statistics and that will be correct. Most of our audience will be agreeing to that. 70 to 80% of JEOs are already working in the industries. Right. But 70 to 80% officers are sitting and preparing for competitive exams or they are doing masters. So that means question from them will not be related to industries or their job. Question from the officers will be related to HR only and from others will be technical. Now second is group task. Group task is different for officers and for JEOs. For JEOs as we know they give 1 page or 2 pages of the task and that is related to some kind of malfunctioning, some kind of problem in the industry, some kind of safety related issues in the industry, something like that. Right. But for officers, they give the task which is related to enhancement of the production, futuristic vision, multitasking activities, diversification. So overall vision of the organization. तो थोड़ा सा difference होता है और हमने बहुत से ग्रुप टास्क डाल भी रखे हैं शुभ्या एक्चुअल वाले जेईओस के एंड ऑफिसर्स के और हम इनको कंटेंट की फॉर्म में व्हेन यू विल टेल देम दैट व्हाट कंटेंट योर पीडीए इज गोइंग टू प्रोवाइड देम आप उसमें जब बताएंगे तो वो सारे के सारे हम उनको शेयर भी करते हैं. तो ये मेन डिफरेंस है. सो द बेस्ट थिंग इज आप कब से मेंटर करते आ रहे हैं? वी टीम एज अ टीम एचपीसीएल के कैंडिडेट्स को बहुत टाइम से मेंटर करते आ रहे हैं. आप वेरिएशंस देखी हैं, आपने ग्रूमिंग देखी है. Why the person or you can say why your PDI is the best? I would like to ask you this time. Okay, so I give you example शुभ्या. 2020 से HPCL ने कोविड के टाइम से गेट से निकल के अपना अलग से एग्जाम्स कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर योर पीडीए इज नॉट ओनली मेंटरिंग देम फॉर group task and interviews but we are mentoring them for written exam also. So your PDA is the largest educational service provider for written exam of HPCL as well as GT and interviews. There came a stage in 2022 जहां पे जब स्टूडेंट अंदर इंटरव्यू के लिए जा रहे थे they were panelists were asking
that have you not seen your PDS solution? The solution of group task you are giving is this. So that tells like the kind of, I must say that the kind of service we are providing to the students. So almost all group task HPCL ask, वो उनको योरपीडिया के यूट्यूब चैनल्स पे मिलते हैं, बच्चों को वो देखते हैं कि हाँ ये सोल्यूशन ऐसा है, और ये पैनलिस्ट को भी पता होता है. तो योरपीडिया एंड HPCL रिक्रूटमेंट, आई मस्ट से that very closely we have progressed with HPCL. और HPCL ने 2023 में पैटर्न चेंज किया, योरपीडिया ने भी नए ग्रुप टास्क प्रोवाइड करना स्टार्ट किया. तो शुरू से we are holding the pulse of this entire thing. Yeah. So I think is कि the experience which we have gathered and also the multiple feedback से सर, जैसे जैसे स्टूडेंट सिलेक्ट होते जा रहे थे, वो एक एक चीज अभी भी इंप्रेशंस आते हैं कि हाउ द इंटरव्यू कैन स्टार्ट, वो भी इम्प्रिंटेड हो चुका है आई थिंक हर मेंटर के माइंड में कि क्या पेट क्वेश्चंस बन सकते हैं. आपका 1-to-1 इंटरेक्शन से बहुत क्वेश्चंस आपको पता चलते हैं. वी कैन गिव यू राइट नाउ स्केलेटन ऑफ क्वेश्चंस, बट जैसे ही आप हमसे इंटरेक्ट करते हैं, आप अपनी हॉबीज बताते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस बताते हैं, वहां से किस लेवल तक के क्वेश्चंस जा सकते हैं, दैट कैन बी इजीली एनालाइज, और वो हम आपको ब्रीफ भी कर सकते हैं. राइट. नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, दैट इज कि वंस द स्टूडेंट गेट्स एनरोल्ड विद अस, राइट, सबसे पहले हम उनको एक ओरिएंटेशन सेशन बताते हैं. आप फॉर्म्स क्या दे सकते हैं, या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे मिलने हैं, राइट. सो आई थिंक शिखा मैम भी ओरिएंटेशन, मल्टीपल मेंटर्स विल बी देयर. मॉर्निंग में है, इवनिंग में है. वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए इवनिंग में दोबारा होता है, मॉर्निंग में भी होता है. दिस इज अ सेशन टू मेक द स्टूडेंट्स कंफर्टेबल विद द प्लेटफॉर्म. एंड कोई भी आपकी ग्रीवियंसेस है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, मैम इतने दिन रह गए हैं, कैसे तैयारी करनी है, या बहुत दिन पड़े हैं, मैम ओरिएंटेशन सेशन कैसे हेल्प करता है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, ओरिएंटेशन सेशन कुछ चीजें बहुत स्पेसिफिकली बताता है कि आपके कौन कौन से सेक्शन है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ ढूंढने हैं, क्योंकि आज तक बच्चों को योरपीडिया पैनल का नहीं वो लगा. पैनल इज अ वेरी बिग वर्ड फॉर देम. अगर उनको वेबसाइट बता दो तो वो डायरेक्टली ढूंढ लेते हैं, वहां पे फ्री डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन होता है. तो ओरिएंटेशन इज जस्ट टू टेल यू कि आज का क्या प्लान है, आज का क्या शेड्यूल है हमारा, कि हमारे सेशंस कौन कौन से हैं, कौन से मेंटर कितने बजे कहाँ अवेलेबल हैं, कौन सी क्लास चल रही है, कौन सा सेशन चल रहा है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट. तो वो अब पेज नंबर्स जो स्क्रीनशॉट्स के साथ, ऑडियो मैसेजेस के साथ, खुद की पर्सनल ऑडियोज के साथ, वो रेगुलरली शेयर होता है बार बार. एंड इवन जो सेशन में भी आपको स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाया जाता है, क्योंकि दिस इज पेज नंबर 1 and this is page number 6, how you need to find out your documentation. So particularly it is going to be a road map कि आपको क्या फॉलो करना है. Exactly. किसी के पास 4 दिन है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं पैनल पे ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पर्सनली भी भेजे जा सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. में भी शेयर होता है, ग्रुप में भी शेयर होते हैं. और मैम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं? हाँ, डॉक्यूमेंट्स मैम सबसे पहले इंपॉर्टेंट द HPCL GT से रिलेटेड, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि GT तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है HPCL का. एंड देन इट कम्स टू HR क्वेश्चंस. इसके अलावा GTs में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सर ने बड़े अच्छे डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू केस स्टडीज and GTs. One liner that we need to use in GTs. ये random और I can say most forwarded messages होते हैं हमारे WhatsApp ग्रुप में. Why? Because ये बार बार learning content है. That is for self study कि तुम इसको खोलो और पढ़ो. तुम इनको पढ़ के आओगे सेशन में, तुम्हें इजी होगा कि मेंटर क्या कह रहा है. इसके अलावा तुम क्लासेस ले रहे हो, ऑफ कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग यू क्लासेस. क्लासेस में भी मैम इंट्रो की क्लास अलग, कंक्लूजन की अलग, जिसमें कि इंट्रोडक्शन इस तरीके से किया जाता है, कंक्लूजन इस तरीके से. एंड एज यू ऑलरेडी मेंशन कि हमारी कम्युनिकेशन की क्लासेस अब इंट्रोड्यूस होती है. इससे मुझे याद है कि हम बहुत टाइम से मेंटरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स को. तो सर आपको पता है कि हम हिंदी इंग्लिश का अलग अलग सेशन देते हैं, राइट. पैरेलल सेशन चल रहा होता है, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, एज पर योर कंफर्ट, कि अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि कई बच्चों को मैंने जो ऑब्जर्व किया है, they left over the like in session between कि मैम सभी इंग्लिश में बोल रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा, I can't sit in the session. ये रिसेंटली हुआ है हमारे साथ कल परसों भी. तो that's why I'm telling कि आपको लैंग्वेज के बेसिस पे अलग सेशन मिलते हैं, क्लासेस अलग मिल रही है. तो वी हैव मल्टीपल सेशंस एंड मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स, रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस, एंड जो ये व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं दैट आर तो रैंडम, वो 10:30 मॉर्निंग में आपको रेगुलरली शेयर होता है. ओके, सो आई विल कम इन अ शॉर्ट कि आप डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, जो भी आपको चीजें पढ़नी है, जीटी के डॉक्यूमेंट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर जो जीटीज हुए हैं, इन द फॉर्म ऑफ विजुअल एज वेल and the documents as so pictures भी, pictorial representation भी, और वो चीजें भी. HR डॉक्यूमेंट हो गया, करंट के रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गया, राइट. और कोई और केस स्टडीज का डॉक्यूमेंट हो गया. मतलब जो चीजें पूछी जा सकती हैं, ऑल आर देयर अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स, राइट. हर दिन अगर आपको कोई चीजें, कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसी डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासेस भी हैं. Now one very good thing before I move ahead, अभी आपने बोला मैम कि जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, we have initiated English communication proficiency for you guys. मोक्षी मैम will be handling those, I will be taking your classes. What is different in that is कि कई स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं, कई बार वो बीच पे स्टक हो जाते हैं, फिलर्स होते हैं, लंबा बोलना या अटक जाना बीच में, से फिलर्स बोलते हैं. How you can fill up those fillers?
इवन यू कैन गिव द बेस्ट ऑफ द आंसर्स बाय प्रेप, और एक स्टार मेथड होता है। सिर्फ ये 4 चीजों के लिए अगर आप कर लेते हैं तैयारी, जिसमें आपको सिर्फ आप रेगुलरली लगा लीजिए, आपके पास जैसे टाइमिंग है मॉर्निंग में, इवनिंग में, आप 1-to-1 कम्युनिकेशन कीजिए, एंड योर ग्रूमिंग ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन इज ऑल्सो गोइंग टू एनहांस इन दीज सेशंस ओनली। तो जो कि आपको जीटीज में बोलने में, HR क्वेश्चंस हैंडलिंग करने में बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। सो डोंट मिस दोस क्लासेस, डोंट मिस दोस प्रैक्टिस सेशंस, आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। Exactly. नाउ one point I'll add, Shubha. So when we say learning content, friends, so your PDA gives you learning content in 3 modes. So one mode which Shikha ma'am just has said, like documents which we release. Right. She said about HPCL document, about HR questions, previous year and expected, about one-liners, terminology she said, and group tasks she said. So that document obviously we provide. Other than content, we provide in the videos form. Right. For technical, we have marathon videos, friends, like mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering. So we have marathon videos for your subjects, which everybody should go. As I told, that officers have less chance that they will ask question, but still there are examples where 60 to 70% interview went for technical only from officers. I mean that anomaly is there. सर एक्चुअली जब फीडबैक्स लेते हैं ना सिलेक्शन वीडियोस का, तो स्टूडेंट्स हैव अ डाउट कि दिल्ली सेंटर में थोड़ा टेक्निकल पूछा जा रहा हाँ, है, ऐसा भी होता है बच्चों बॉम्बे का। सेंटर में कम है, कोलकाता हाँ, सेंटर में ऐसे है, तो वो आपको पता चलना शुरू हो जाता है। लेकिन सेफ साइड तो यही है करना कि तो आप पड़ेगा। प्रिपेयर करो, और वो सब्जेक्टिव भी जाता है सर। हाँ जी। एक बार याद होगा स्टार्टिंग में बहुत बच्चे का, एक बच्चा था ऐसा, आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ गर्ल, उसका ज्यादा करंट में चला गया। हाँ जी, नाउ हाँ जी। नो वन एक्सपेक्टेड कि करंट अफेयर से पूछा जाएगा कुछ भी ऐसा रीसेंट क्वेश्चंस। इस बार करंट का इसलिए भी इशू है मैम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर इन द मिडल ऑफ ऑयल क्राइसिस। Right, right. हॉर्मूज में जो चल रहा है, ये जितना भी चीजें हो रही हैं, तो वी आर इन द मिडल ऑफ द क्राइसिस। पेट्रोल के कॉस्ट बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है, and this is something which is very very relevant for HPCL. Right. Last time I remember, Shubham, you led entire team to the petrol pump and we were shooting there, and एक्चुअली दिस हैज अ मीनिंग कि अभी जितना भी पेट्रोल का कॉस्ट बढ़ रहा है, वो पूछते हैं कि आपके जैसे 100 प्लस हो गया है, 104 रुपए पर लीटर हो गया है, तो अब ये प्राइस जो है ना शुभ मैम, जब तक आपका इंटरव्यू चलेगा फ्रेंड्स, तब तक आपसे ये प्राइस की फ्लक्चुएशन वो पूछेगा, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत बार प्राइस रिवाइज हुआ है, तो ये करंट से रिलेटेड है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन करंट से रिलेटेड है, तो वो पूछते हैं क्वेश्चंस, वो भी अपडेट करना है। जीटीज बन सकते हैं और केस स्टडीज हो सकती है, Exactly, राइट? मतलब exactly. यहाँ पे तो आपको करंट की रेलेवेंस इतनी हो चुकी है, हाँ जी। करंट की क्लासेस भी हैं, डॉक्यूमेंट की क्लासेस, और ये तो टॉपिक्स अपडेटेड हाँ, वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो शुभ मैम दूसरा तो ये हो गया वीडियो के फॉर्म में। वीडियो के फॉर्म में जो जैसे हरमंदर सर करवाते हैं, जो HPCL का डॉक्यूमेंट है, उसका वीडियो भी बनता है, कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि इस डॉक्यूमेंट में क्या करना है, किसको छोड़ना है, किस पे हाईलाइट करना है। तो हाँ, तो उसमें हाँ जी, उसमें सर ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हम लोगों ने डिटेल में बनाया गया है, राइट? उसमें क्या कंपनी के बारे में है, उनके क्या मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नेशनल चल रहा है, इंटरनेशनल चल रहा है, क्योंकि HPCL एज अ कंपनी ऑफशोर और ऑनशोर दोनों लोकेशंस पे कर रही है। तो वो एक डिटेल हमने 15-20 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, जिसमें आपको कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में और बहुत कुछ है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, राइट, और ये कौन कौन से वर्टिकल्स पे ऑपरेट करता है, राइट? सो ये सारी चीजें उनको बताया गया है, विच इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, एंड इट विल हेल्प यू टू गेट एन अपडेट ऑन HPCL. I must say, rather than Google, this data has been prepared. So this is how we take care of all your preparations, which will help you to crack your GD, PI, everything which has been there required. एक तीसरा जो मोड है शुभ मैम, वो है ऑडियो का मोड, जो हमने आई थिंक लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो मेंटर्स इनके व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स के हम ऑडियो में मैसेज भेज देते हैं। जैसे आप HPCL क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन HPCL, नो व्हाट कैन बी द स्टैंडर्ड रेफरेंस आंसर फॉर दैट, मेंटर विल रिकॉर्ड इट एंड सेंड इट टू द स्टूडेंट्स। और ऐसे 15-20 HR क्वेश्चंस होते हैं शुभ मैम, जो हम सब लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑडियो में, वीडियो में, कंटेंट के फॉर्म में ये मोड ऑफ लर्निंग है शुभ मैम बच्चों के लिए, जो हम प्रोवाइड करते हैं। ट्रू, एंड थैंक्स कि जो भी डॉक्यूमेंट रीडिंग की बात हो रही थी, हिंदी के स्टूडेंट्स होते हैं कि मैम इंग्लिश समझ नहीं आ रहा डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए ही सेपरेट सर क्लासेस आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं? नहीं, इसमें हो जाएंगी और हम कर भी रहे हैं, क्योंकि इसमें बेटर ये है कि आप जो भी क्लासेस, आपको जो शेड्यूल दिया जाएगा, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ओनली थिंग इज कम ऑन टाइम, अटेंड द सेशंस ऑन रेगुलर बेसिस। वी आर कंडक्टिंग इट बोथ इन द इवनिंग एज वेल एज इन द मॉर्निंग, so that if the so documents are available at all so front. I think consistency matters. अपने रेगुलर सेशंस कराओ, एंड अभी तक मैंने ओरिएंटेशन थोड़ा ब्रीफ में बताया, डॉक्यूमेंट सेशंस का, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। अभी एक मेन चीज आ जाती है सर, वो है एम्प्लॉयमेंट फॉर्म।
अगर हमें ये पता है कि जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होता है एचआर का सारा कहाँ पे मूव कर जाता है, आपका एचआर को उनके पास फॉर्म होता है, वहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भाई अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस बताइए, हॉबीज क्या है। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ स्टूडेंट जो सिंगिंग में बहुत अच्छा था और उसे गाना भी बुलवाया गया, या फिर शायरी अच्छी है तो आपसे पूछा भी जाता है। दे आर द बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स बिकॉज आई वुड से बहुत कंफर्ट करते हैं बच्चों को, सो दे विल बी डूइंग दैट। मैम मुझे बताओ पूजा मैम, आप ले रहे हो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म के सेशंस लेते हो, आप उनको फिल करवाने में हेल्प करते हो, एवरीथिंग यू डू, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर्म ओवर है? एम्प्लॉयमेंट फॉर्म की रिलेवेंस ये है कि पैनल के पास आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे रहेगी। इट इज थ्रू एम्प्लॉयमेंट फॉर्म इन विच योर नेम, योर बेसिक प्रोफाइल, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, राइट, एंड फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब बाद आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, एंड सम ऑफ इन फॉर्म दे आस्क द रेफरेंसेस आल्सो, ठीक है। उसके बाद भी आपको रेफर करते हैं कि आप कहाँ काम कर रहे थे, कौन कौन आपको जानता है, आपकी पर्सनालिटी को जानने के लिए। बेसिकली दैट इज द रेलेवेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर्म इन द इंटरव्यूज। नो अबाउट यू बिफोर इवन यू गो इनसाइड, या बिफोर, या एग्जैक्टली। तो वहां से आपका हाईलाइट कर लेते हैं, लेकिन फिर आपको वो ग्रिल करते हैं कि आपने सही भरा था या गलत भरा था। हाँ, और आप अवेयर कितने हैं, आपने भरा भी है उसमें जो इन्फॉर्मेशन, आप उसके लिए भी प्रिपेयर होके आए हैं या नहीं आए हैं, कि आपने सिर्फ अपना फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। एंड वहीं से ही जो काउंटर क्वेश्चंस हैं वो पूछने शुरू करते हैं पैनल। ओके शुभा मैम, वन थिंग आई वांट टू एडवाइज स्टूडेंट्स, लाइक आप भी जानते हैं मैम, जैसे स्टूडेंट्स जब हमारे पास रजिस्टर करते हैं तो ऑलरेडी उन्होंने कईयों ने फॉर्म भर दिया होता है। दे शुड नॉट डू दैट, दे शुड डिस्कस विद द मेंटर्स एंड देन ओनली यू हैव टू फिल द फॉर्म, बिकॉज उसका चेंज नहीं होगा। और कई बार वो ऐसी चीज लिख देते हैं फिर देन दे आस्क अस टू जस्टिफाई दैट इज नॉट। तो आप पहले डिस्कस कर लें फ्रेंड्स एंड देन यू फिल द फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल कल ही एक क्वेरी आई थी सर कि मैंने एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में परसेंटेज अपनी बाय मिस्टेक ये लिख दिया है, अब मैं क्या करूं, now what should I do, and these type of a question candidate ask। तो बेटर है कि पहले ही गाइडेंस ले लो, बहुत ध्यान से फॉर्म को भरो, उसमें एक छोटी सी गलती आपको पे ऑफ कर सकती है बाद में। इसका एक और तरीका हो सकता है कि आप वो फॉर्म जो है अगर उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं और उसको यू फिल अप विद सम पेंसिल और समथिंग लाइक दैट, सो दैट यू गेट एन आइडिया एंड गेट द डिस्कशन विद अस, so that at least where you feel that some you are not understanding where हम उसको क्या डाल रहे हैं, कैसे डालना है, और जब वो फाइनल हो जाए उसको आप देख के आप अपना वो फाइनल फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। इसमें हरमंदर सर क्या होता है कि फॉर्म पिछले कई साल से मैं देख रहा हूँ सेम फॉर्म होता है, और 2-3 वीडियोस तो योरपीडिया में डाल चुके हैं मेरे ख्याल से, अलग अलग मेंटर डालने हुए हैं, श्रुति मैम ने बनाया था, फिर मैंने बनाया था, अलग अलग मेंटर्स हैं। तो फॉर्म में क्या होता है फ्रेंड्स, दैट वीडियो इज ऑलरेडी देयर ऑन योरपीडिया, फॉर्म स्ट्रक्चर इज आल्सो देयर, इवन सो मच सो सर व्हेन दे गो फॉर द कैंपस प्लेसमेंट they ask similar kind of question also for the campus placement also, so students are already aware like the kind of questions they are going to ask you in the employment form, so they should be mentally prepared, and when they start mentoring with us, I mean this take inputs from us, so they can discuss those questions also from us. See, every single question is important, be it your strength and weakness, क्योंकि वो प्रोफाइल से मैच होना चाहिए आपका, आप किस रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाओगे। आप अगर लीडरशिप स्किल्स बताते हो, आपने कुछ परफॉर्म किया था ऐसा, तो ही आप वो चीजें लिखे, and discuss with the mentors before you fill the form, and all the important questions जो भी वहां से आपके प्रोड्यूस हो सकते हैं, right? Apart from it, we do generally the doubt session as well। किसी भी तरीके का डाउट हो, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, आपको एप्लीकेशन में कोई डाउट है, so the candidates can come for that as well, any type of a guidance। So I'll come to the most important part, GTs, जो आपको क्वालिफाई करना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है GTs, जिससे आप, आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत चेक होता है GT में, सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्टिंग नहीं हो रही है, नॉलेज टेस्टिंग हो चुकी है, CPT हैज डन योर नॉलेज टेस्टिंग, नाउ इट इज अ ग्रूमिंग पार्ट फ्रॉम योर टिप टू टो, कि आप कैसे एंटर कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स यू स्माइल, हाइपर एक्टिव तो नहीं है, हाइपो तो नहीं हो, तो हर चीज। तो शिखा मैम, यू हैव बीन टेकिंग GT सेशंस, और GTs मल्टीपल डोमेन्स के होते हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, IOCL के GTs और HPCL के GTs कैसे डिफरेंस है? IOCL के GTs मैम 1 लाइनर्स होते हैं, 1 लाइनर, और आप कह सकते हो 2 लाइनर्स होते हैं, छोटे होते हैं एज कंपैरेटिव टू HPCL। HPCL तो जाना ही जाता है लाइक उसके लिए, GTs के लिए। IOCL में तो स्टिल वी हैव GDs एज वेल, वी हैव GTs एंड वी हैव PI, बट फिर इन HPCL वी हैव GT एंड PI ग्रुप टास्क। तो उसमें क्या होता है मैम, HPCL के GTs आपको हाफ पेज के मिलेंगे,
लाइक 4-5 लाइंस के, Half, one and वन half पेज, is, 1.5 पेज की, ये एवरेज रहती है उसकी। और स्पेसिफिकली IOCL में तो आपको ज्यादा, इवन थोड़ा सा और ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है। एक लाइन में आपको जीटी दे दिया तो आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता होगा कि जितना लंबा जीटी होता है उतना ज्यादा आप कह सकते हो डिफिकल्ट होता है, बट एक्चुअली वो उतना ज्यादा इजी होता है। अगर आपको हाफ पेज पे उसने बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, ये इंसिडेंट है, आप इजीली उस चीज को हिंट आउट करके, क्लू ढूंढ के अपना आंसर निकाल सकते हो। ट्रू। तो जितना बड़ा जीटी, एंड इट डिपेंड्स, जियो हाँ। के लिए एक पेज का आ जाता है। हाँ, आपने देखो officers कई बार के थोड़े पिछले बार से हो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो जल्दी पढ़ना शुरू कर देते हैं या आधे टाइम से को ज्यादा बच्चों का रिजेक्शन यही था कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो की, दे हैव जस्ट स्प्लिट द पेज। और मैं सर ने स्पेशल वीडियो भी बनाई थी उसके लिए कि आपको पेज नहीं ट्विस्ट करना है जब तक आपको नहीं बोला जाए। जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि इसको पढ़ना है तो पढ़ो, उसके बाद उसको साइड में रखो, उस तरीके से। Okay, Shubham, one more thing I'll add to the group task part. हमने क्या देखा 2023 के बाद, आफ्टर 2023 HPCL every year is changing its GTs now. अब अगर जो पिछली बार आया 6 महीने पहले 2025 में जो GT आया, there is a very high probability you guys are going to get a new GTs. But having said that, जो हमने टर्मिनोलॉजीज और वन लाइनर चीजें निकाली थी वो इसीलिए निकाली थी कि ग्रुप टास्क को क्रैक करने का HPCL में एक आपके पास एक तरीका है, वो ये कि अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन में, शुभ मैम, अगर इन लोगों ने वो लाइनर डाल दिए, टेक्निकल जार्गन्स डाल दिए, सेफ्टी से रिलेटेड, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस से रिलेटेड या कुछ भी है, तो वो पास हो जाएंगे। Right. तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हम बोलते हैं SWOT एनालिसिस कर दिया, या मेंटेनेंस है, Standard हमने operating ऐसे कुछ procedure, कर दिया, वो टर्म्स होती हैं। तो अगर वो टर्म्स आपने याद कर ली, जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो आपका कोई भी जीटी हो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। यूरोपीडिया का भी स्ट्रेटेजी अब जो मैम चेंज हुआ है, 23 से पहले हम बोलते थे ये 8 या 10 जीटी आएंगे, एक आइलैंड प्रॉब्लम होती थी, एक ऐसा होता था, वहीं से आएगा, आप आंसर कर दो। अब हमने क्या किया है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप ये चीजें, आप ये ट्रिक्स याद करना, कोई भी जीटी आएगा, अगर आप ये ट्रिक्स यूज करेंगे तो आप उसमें पास हो जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है शुभ मैम प्रैक्टिस के साथ, पढ़ने से रिलेटेड नहीं है। एक स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन होता है कि साहब मेरे को वो 15 जीटी दे दो जो मैं पढ़ूं और मैं जाके आंसर कर दूं, ऐसा नहीं होता। आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे शुभ मैम, अगर वो जीटी हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सवेरे उनको जीटी भेज देते हैं कि आज आपका ये जीटी होगा, उन्होंने पढ़ा होता है उसको, लेकिन आप भी जानते हैं कि स्टूडेंट वहां बोल भी नहीं पाता, कारण क्योंकि वो प्रैक्टिस से रिलेटेड है। सर, हाउ टू मेक अ स्पेस अमंग्स्ट 8 स्टूडेंट्स? 8 बच्चे बैठे हैं, मेरे को कब पार्टिसिपेट करना है, मुझे कितनी बार पार्टिसिपेट करना है, मुझे कंक्लूजन देना है या नहीं देना है, मुझे क्या इवन दे गेट द पेपर और उस पे क्या क्या चीजें लिखनी है, ये तभी चीजें आपको आ सकती हैं जब आप सेशंस लगाएंगे। आपकी रोज वो चीजें चेक होती हैं, आप जो पेपर पे टाइप कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, वो ले लिए जाती है आपसे शीट्स। तो क्या शीट्स पे रेलेवेंट कंटेंट लिखा था जो बोला था? कई बार नहीं भी बोल पाते हैं बच्चे, दे चेक द पेजेस आल्सो एंड दे आस्क इन द पीआई आल्सो कि आपने तो इतना अच्छा लिखा था, आपने वो चीजें। तो हर एवरी सिंगल थिंग मैटर्स। मैम एक और चीज, जो जीटीज हैं, आप क्लासेस भी ले रहे हैं जिसमें आई टोल्ड यू कि ये चीजें आप करवा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीटीज कौन कौन से, कुछ डोमेन्स बता दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीटीज में हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड, और आप कह सकते हो एक्सपेंशन से रिलेटेड, डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस एक्सपेंशन। ये बहुत कॉमन जीटी है जो आई थिंक मैंने कई बार देखा, दैट इज आपका एक्सपेजेड टेक्सटाइल का बिजनेस है, नाउ वी हैव टू एक्सपैंड दैट इन पाइपलाइन डोमेन, ठीक है। तो उस पे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कौन कौन से कोजेस हैं कि हम उस चीज को सोचें, राइट, कि वाई वी आर एक्सपेंडिंग दैट, उस पे मेजर सॉल्यूशंस क्या होंगे इन रिस्पेक्ट टू कि हम किस तरीके से वो डिसीजंस ले रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं HPCL के, तो हाउ वी कैन गो फॉर द स्पेशलाइजेशन इन पाइपलाइन ओनली। तो इस तरह के जीटीस बेसिकली, अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड आ जाता है, राइट, जो मैनेजमेंट लाइक आप कह सकते हो कि सीनियर जूनियर है, मैनेजमेंट लेबर क्लास, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट आ गया, आपका एक्सपेंशन आ गया, डाइवर्सिफिकेशन आ गया। जो अभी 2025 में हमने देखे थे जीटीस, उस पे हमने सेपरेट डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, लाइक डेडिकेटेड, उस पे लिखा हुआ है प्रॉपर। तो वो टेक्निकल थे, उस पे थे आपके ज्यादा कि आपका लाइक एक्सपेक्टेड कंप्रेसर खराब हो गया है, तो आपका ये वॉल डिस्ट्रप्शन हो गया है, वहां से फ्यूल जो सप्लाई चेन है वो टूट गई है, तो हाउ विल यू रिजॉल्व दैट। उसके बाद आ जाता है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एज वेल, क्योंकि कई ट्रेनिंग सेफ्टी वाला आ जाता है कि उसमें ये वो चेक करते हैं कि सेफ्टी कोई एक्ट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, क्या उसके बारे में बच्चों को पता है या नहीं पता है। बिकॉज एक अभी रिसेंट जीटी था, जैसे कि आई कैन से कि कोई वार डिस्टर्ब हुई, उससे हमें सप्लाई चेन को भी, लाइक फ्यूल जो सप्लाई है उसको भी नहीं हम डिस्टर्ब कर सकते, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात आ जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेफ्टी,
वो वर्कर के लिए बहुत डेंजरस है। तो आप सेफ्टी कैसे इंश्योर करेंगे, साथ के साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कैसे लीड करेंगे, सो दिस काइंड ऑफ जीटी। So I think 10 to 15 मल्टीपल हाँ। डोमेन्स हैं जो आप प्रैक्टिस कीजिए, और एक डोमेन पे 3 से 4 टर्मिनोलॉजीज मैटर करती है जो Exactly. याद होनी चाहिए। बट द थिंग मैटर्स इज आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं। मुझे सर वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, वर्क फ्रॉम होम के जीटी के आने के कितने चांसेस है? वर्क फ्रॉम होम जीटी कितना आएगा ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हम सब लोगों को जल्दी वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, क्योंकि वी आर टू मेंटर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स शुभ्या, और जून का मंथ चल रहा है और पेट्रोल के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ऑलरेडी बोल चुके हैं वर्क फ्रॉम होम। सो आई relish mentoring students morning till evening even without taking bath friends. So we sit, all of us know that we sit morning till evening, और बहुत ज्यादा मेंटरिंग स्टूडेंट्स को करते हैं, ये प्रैक्टिस से रिलेटेड होता है शुभा मैम, एंड आई relish this like 8 o'clock in the morning we start मैम, we start 8 o'clock in the morning And it goes until by 11 o'clock, हाँ 11, 12 लेट तक चलता है। सर कहीं तो एयरपोर्ट बैठे भी आए थे, स्टिल रिमेंबर जो लास्ट हाँ। टाइम हुआ था, द स्टूडेंट्स दे हैड देयर फ्लाइट्स हाँ। एंड दे वर टेक्सटिंग ऑन द एयरपोर्ट्स। मैम कल 12:30 हो गए हैं, हाँ। कल इंटरव्यू है, कुछ क्वेश्चन रह गया तो बता दो। इंटरव्यू पैनल में हाँ। आपको याद है दैट स्टूडेंट वाज Yes. देयर एंड वो एक- पूछ रहा आपसे Ma'am, we are into many things. We are mentors, we are teachers, we are doing many things. But one thing, as a mentor, I know कि इससे ज्यादा enjoyable experience मेरे लिए कुछ नहीं होता है कि जब we are mentoring students for GTs and interviews for practical things, और वो सब लोग enjoy करते हैं, तो ये students को they should also enjoy this particular phase of lot of practice with us. That is what they have to do it. तो And now immediately they should start it. सर आई थिंक वर्क फ्रॉम होम का जीटी आ सकता है। वर्क फ्रॉम होम ऑब्वियसली आएगा, और कुछ अभी current में क्योंकि चल रहा है। पीएम साहब ने बोला है ना करंट में है। इट वाज जस्ट अ जोक कि ऐसे आई स्टार्टेड, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट्स नहीं नहीं, कुछ चीजें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है, जैसे आप हाँ, क्योंकि कोविड के टाइम पे सर वो शुभम आज 26 तारीख है, हाँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगला एक वीक तक देयर इज एडवाइजरी लाइक यू शुड नॉट मूव आउट इन द सन, राइट। आपको अवॉइड करना है Right. दिस एलिनो इफेक्ट इन इंडिया व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग। तो एक बहुत एक्सट्रीम हीट सिचुएशन इन इंडिया, ऑयल क्राइसिस इंडिया के अंदर आ रहा है, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरीज जो रिलीज हुई हैं, तो ऑब्वियसली वहां से लिंक होते हुए, और एक और सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है न्यूज वगैरह में कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस कैसे जा रहा है, हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस, और ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज इतनी बड़ी हैं, एचपीसीएल स्पेशली शुभा मैम, इवन कोविड के टाइम पे दे वर नॉट इन लॉसेस, इवन कोविड के टाइम पे दे वर नॉट इन लॉसेस, दैट इज because the price of the bent crude was very low. यस And even if we consider bent crude 10 years back down the line, it was roughly around what 60-70 odd Yes, yes. barrels. Yes. Now it is roughly around 100-125. yes So it can come definitely because energy crisis is there. Hmm. Second, it will relate to the economic conditions which is creating for India for these companies yes specifically. yes तो ये सर आपने अभी बहुत जीटीज हमें नए नए टॉपिक्स दे दिए। दिस हाँ जी। कॉल्स अबाउट द एक्सपीरियंस, Yes. द वर्ड्स, द टर्मिनोलॉजीज व्हिच सर इज आंसरिंग, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न गाइस। Yes. और यही सर आपने अभी जो जीटीज दिया है, इसके भी डॉक्यूमेंट्स बच्चों को मिल जाए तो बहुत immediately from tomorrow onward they will start getting So it if done. you have any GT of your choice कि कहीं लग रहा है, हाँ कुछ जी। भी आपको probability भी लगती है, you can discuss it in the sessions also, you can drop up in the comments and you will get the exact answers क्या क्या आपको frames करने चाहिए, some of the protocols in the document form. Done. ओके, वन मोर थिंग आई लास्ट कि अब एचआर क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि सर सारा ही एचआर होता है, और डॉक्यूमेंट रीडिंग। जब भी स्टूडेंट एचआर के लिए जाता है, इज आस्क्ड, हिज इंट्रोडक्शन होता है, देन ही इज आस्क्ड आप कहाँ से आते हैं, ट्रैवलिंग आ गया, फैमिली बैकग्राउंड, और ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। सो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चंस? HR questions range from basics to it go to the top end questions. For example, it can be related to the organization structure, how well you are understanding the organization structure. Then they can relate to the execution strategy. If your senior is there and he is implementing something which is not as per the SOP, then how you're going to talk to him on what grounds. So that is very important, right? Basic, if we take an HR, simple, what is your introduction, about your career, about your strength, about your weakness, and so on. So we take from basic to the top end questions, which will help you. आप लोगों को ये हेल्प करेगा, राइट? इवन दोज पीपल हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम ऑल्सो, सो वी आर गोइंग टू टेक अ सेशन इन हिंदी ऑल्सो. आपका जो जवाब होगा हम उसको हिंदी में भी प्रिपेयर कराएंगे एज पर द मैम्स दिस थिंग, दैट इंग्लिश और हिंदी, बिकॉज पीपल डोंट ऑफन यूज द टर्मिनोलॉजीज, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे उसको यूज करे. तो एचआर में काफी चीजें यूज होंगी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, राइट, और सब चीजों के लिए. तो ये आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी and it will help you a lot.
Okay, so the last important thing, आपकी इंटरव्यू हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है. That is going to be the first impression, the way you start in the terms of your panel. They can ask in multiple ways. आप अपने बारे में बताइए, आप कौन से ईयर पास आउट हैं, या आप कैसे ट्रैवल करके आए हैं. So they ask you to make you comfort at the very Yes, start, yes, yes. and they want to know about you, right? Remember कि मुझे सब कुछ नहीं बताना है, because the form which I have filled already it has a lot of information about me. आप इंट्रोडक्शन में प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स नहीं रिक्वायर्ड है. टॉक अबाउट योरसेल्फ, डोंट मेंशन अबाउट योर पेरेंट्स, फैमिली बैकग्राउंड्स एट द स्टार्ट व्हेन टिल द टाइम दे डोंट आस्क यू. आईओसीएल में पूछा गया था स्टूडेंट से एट द स्टार्ट, इंट्रोडक्शन के साथ फैमिली बैकग्राउंड दीजिए, तो आप देते हो. अदरवाइज आपकी बात हो रही है, आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप इंट्रोडक्शन को इधर असेंडिंग में रखिए. सबसे पहले गुड मॉर्निंग कीजिए, कैसे एंटर करना है. देयर लॉट्स ऑफ वीडियोस आल्सो, इवन विल ग्रूम इट आउट. बहुत स्टूडेंट्स अपने प्रॉपर जैसे द अटायर दे वांट टू वेयर, दे गिव देयर इंटरव्यूज इन दैट पर्टिकुलर डोमेन इन द जूम सेशंस. तो आप अपनी इंट्रोडक्शंस, हाउ टू मेंटेन आई कांटेक्ट, रोलिंग नहीं करनी है आपको. The proper poster to sit should be there. Then introduction, good morning everyone, make an eye contact with all the mentors, all the team members. Then it is I am, what is your name, just tell about it. Then it is I come from city, don't start explaining your city guys. Coming to my academics, अपनी academics की line दीजिए. And last, अगर आप अपने कोई भी आप अपनी projects के बारे में बताना चाहते हैं, course specialization बताना चाहते हैं, experience बताना चाहते हैं, ये तो मैंने दिया skeleton. Last line is a magical line where you can pull the interview in your direction. So yeah, you have to discuss about those interview that starting with the mentors. And I think we can give you the best of the guidance. The only thing is we require the transparency कि आप sharing कीजिए और आप अपनी खुद recordings भी कीजिए. Students have a doubt कि हम YouTube के लिए videos आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं. रिकॉर्डिंग्स कैन बी डन विच कैन बी kept only on the panel. So that is your main, अगर you allow us then only we'll put it, otherwise we don't put it. And also जो रिकॉर्डिंग्स है वो आप अपने लिए भी रख सकते हैं ताकि आप खुद चेंजेस देखिए डे 1 to day 10 में मेरे अंदर कितने चेंजेस आए हैं, मैंने कितने GTs लर्न किए हैं. So it is a combined effort which the team of Yourpedia and we together are going to put, I think guys, right? So yeah, the sessions are started. आज से आई थिंक सर GTs ओरिएंटेशन सब सेशंस चल रहे हैं. आई रिपीट, इट इज विद ओरिएंटेशन सेशन, फॉर्म फिलिंग सेशंस, योर केस स्टडी क्लासेस, योर HR क्लासेस, GT क्लासेस, देन द प्रैक्टिस सेशंस, द communication, English communication enhancement classes, any doubt sessions you have, and open end communication, it will be conducted 2 times by Dr. Vijendra, जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है गैप के रिलेटेड, the magical word gap सर, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है सर हमेशा एडवाइस करते हैं बाय द लास्ट ईयर से कि अगर आप हमसे एनरोल करते हैं, नहीं भी करते हैं, यू कैन कनेक्ट अस, राइट? दैट्स ट्रू. फ्रेंड्स, गैप के लिए आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. आप चाहे हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है चाहे नहीं है, इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर, एज अ मेंटर टू हेल्प यू इन दैट. तो यू कैन गेट इन टच विद मी एंड आपका कोई भी गैप है उसका कैसे आंसर करना है, आई विल लिसन टू योर केस फर्स्ट. See, we don't believe in bluff. We'll never tell you to bluff because bluff is something जो आपको रिजेक्ट करवाता है. We only tell you how to speak it in a proper way. That's it. और वही तरीका आपको हम बताते हैं. And many times, when I tell you that, okay, can you do this? Have you done this? You say, हाँ सर वो तो मैंने किया है. लेकिन वही चीज मेरे को आपको बतानी होती है और गैप जस्टिफाई हो जाता है. नथिंग टू वरी अबाउट द गैप. You need to increase your confidence. That's it. And even Nishant sir is not present right now. He connects and he guides you related to all the finance related. Yes. जो भी आपको problems आती हैं, topics आते हैं. So Team Yourpedia is there to help you guys, and we'll see you soon in the Zoom sessions. All the best, guys.